good evening. You're watching Breaking Ground and I am Swati Joshi. Let me first tell you about the top 5 developments that are setting the agenda. Fresh political storm in Bihar. Robert Vadra raises eyebrows on the Election Commission after record-breaking defeat in Bihar elections. Alleges EC helped the BJP during the electoral process. Demands fresh polls. On Breaking Ground, we debate why do only bahanas and not accept the Bihar Janata's verdict. Then we'll talk about the politics around the terror module. November 10th, Red Fort blast aftermath. A chilling terror blueprint decoded. The plan was bigger and darker. Terror doctors called it the D6 mission. A bloodbath across 5 major Indian cities. A massacre, a massive conspiracy waiting to unfold. What was the plan? How was it thwarted? We will take you through all the top facts. Focus on Karnataka as well, where there is a growing buzz over possible rejig in the state cabinet. The big twist, DK Shivakumar all set to return to Bengaluru, while CM Siddaramaiah to attend meeting with the party high command. We'll also talk about the tragedy that struck near Medina in Saudi Arabia. 42 Indian pilgrims killed following a devastating collision between a bus and a tanker. The victims were travelling from Mecca to Medina when the bus caught fire. Prime Minister Narendra Modi has taken stock and has also assured support to the family members. And then we'll talk about the other big story, the global story that's unfolding. Bangladesh's International Crimes Tribunal has sentenced former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to death in a case over alleged crimes against humanity. The court found Hasina guilty on 3 counts. However, Hasina slams extremist agenda, calls verdict by a rigged tribunal. Let's now talk about the Bahana politics of the Congress party. Bihar results are out and Congress has resorted to Bahana, to excuses to hide behind the SIR exercise to justify its defeat. Vote chori, EVM manipulation and rigging. These have been the sharp accusations levelled by the opposition after NDA's sweeping victory in Bihar. Now, businessman and Priyanka Gandhi's husband Robert Vadra has raised eyebrows by demanding repolls, directly questioning the legitimacy of the mandate. Vadra alleges Election Commission played a role in NDA's win and says no one agrees with the Bihar results. He adds that a re-election could even change the outcome. Listen in. कहूंगा कि बिहार की जनता असल में खुश नहीं है। जो हुआ है बिल्कुल वो ईसी के वजह से हुआ है। ईसी ने मदद की है और ऐसे जो ये रिजल्ट आए कोई भी उसमें सहमत नहीं है। और राहुल जी कल सब लोग उसके साथ मिल रहे हैं, जितने भी जवान युवक हैं सब उनके साथ जुड़ेंगे और आंदोलन करेंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये कोई चुनाव ढंग का नहीं था और दोबारा चुनाव होने चाहिए वहां, फिर आपको दिखेगा बिल्कुल रिजल्ट पलटेगा। Well, the BJP has strongly rejected Robert Vadra's allegations over Bihar's election results, calling them completely baseless. BJP has accused Vadra of being in state of delusion and pointed out that the real issue lies not with the Election Commission but with Rahul Gandhi. They also questioned how someone facing corruption charges could accuse the Election Commission of bias. Listen in. Robert Vadra राजनीति में भले एक्टिव नहीं है, पर राजनीति में जब सत्ता आती है कांग्रेस की तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी वही है। और वो सारे मामले ईडी में, सीबीआई में, कई जगहों पर चल रहे हैं। तो सत्ता आने के बाद कैसे लोगों को लूटा जाता है, इस पाठशाला के जो स्वयं प्रिंसिपल है वो कहे कि री इलेक्शन हो। भाई साहब, अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए संविधान का रॉबर्ट वाड्रा अवमान कर रहे हैं। Well, there seems to be a rift within the Congress party when it comes to taking accountability and responsibility for the defeat that the party has faced in Bihar elections. Let me first take you through the Bahana Brigade, the reactions that are coming in from several leaders of the Congress party that have very conveniently placed the blame at the Election Commission for their loss. Let's break down the details of the multiple statements that have come in from within the Congress. First, the latest is Robert Vadra. Robert Vadra says Election Commission assessed NDA's victory in Bihar. So he says that Election Commission helped. Re-elections will change the result. He's also demanding repolling. He has said that perhaps it will change the entire outcome. Then you had Udit Raj, Congress leader, who says the elections were completely rigged. Instead of taking accountability and responsibility, EC and BJP being blamed, Udit Raj says polls were in hands of the Bharatiya Janata Party and the Election Commission. And then you have Supriya Srinath of the Congress, who said large-scale voter fraud
happening, and that's the reason why they feel that the Mahagathbandhan lost the Bihar election. So this is what these leaders had to say, blaming the Election Commission and the Bharatiya Janata Party. But then there are those within the Congress party who are showing the Congress party the mirror. The allies are also not far behind. Congress's own ally have questioned the party's groundwork. Samajwadi Party says Congress must introspect and learn lessons from them. ठीक है, किसी भी चुनाव के हारने के पीछे कोई एक रीजन नहीं होता है, कई रीजंस होते हैं। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल जो पार्टी के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की कमी रही, वो भी एक इशू था। और हमको लगता है कि आने वाले समय में उन तमाम चीज़ों का विश्लेषण होगा, पूरे चुनाव का विश्लेषण होगा कि कहाँ हमसे कमी हुई, कहाँ गठबंधन से कमी हुई, और उसको आगे को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास। बिहार चुनाव से सबक लेते हुए इस बात को कांग्रेस का ख्याल रखना होगा, जिस तरह समाजवादी पार्टी जमीन पे काम कर रही है, उन्हें भी जमीन पे उतरना होगा, जमीन पे काम करना होगा। सिर्फ हवाई एक दो यात्राओं से काम नहीं चलेगा, जमीन पे जुड़ना होगा। अगर 27 चाहते हैं कि 27 में सत्ता परिवर्तन हो, समाजवादी पार्टी जिस तरह से जमीन पे काम कर रही है, उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी आजादी के समय की पार्टी है, बड़ी पुरानी पार्टी है, उसको लगता होगा कि अकेले लड़ेगी। अभी वो आरजेडी के साथ बिहार में लड़ी और 6 सीटों पर आ गई। अगर महाराष्ट्र में उसको लगता है कि वो महानगर पालिका के चुनाव अकेले लड़ेगी, तो हम तो उनको यही कहेंगे कि आप को हम शुभेच्छा देते हैं, शुभकामना देते हैं। 2017 में बीजेपी जैसी पार्टी जिसकी डबल इंजन की सरकार के सामने चुनाव लड़के हम 2 सीटें ज्यादा जीतते हैं, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कांग्रेस हमारे सामने अकेले लड़के क्या जीत लेगी। Let's open this up and go across to our guests. We're joined by Dr. Kaushal Kant Mishra, BJP spokesperson. We also have Sanjeev Kaushik, political analyst. Let me first go across to Sanjeev Kaushik. Sanjeev Kaushik, अब हार की जिम्मेदारी लेने में भी कोई यूनिटी दिखाई नहीं दे रही है। There are those who are saying very conveniently कि रीपोलिंग करा दीजिए, इलेक्शन कमीशन की गलती है या इलेक्शन कमीशन की वजह से बीजेपी जीती। बट देन देयर आर सम सेन वॉइसेस एज वेल, लाइक मिस्टर तारिक अनवर हु सेइंग कोई एक वजह नहीं होती, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, वी नीड टू फाइंड आउट गलती कहां से हो गई। देखिए स्वाति, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार जो है वो निश्चित तौर पे प्रचंड बहुमत से बिहार में वापस की है, और इसकी बधाई और शुभकामनाएं भी। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिस सवाल का जवाब ढूंढा जाना बाकी है। क्या वाकई बिहार की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि जिस बहुमत से, जिस तरह से जिस प्रचंडता से ये सरकार वापस की है, तो मान के चलना चाहिए कि अब महाराष्ट्र के लोग बिहार में मजदूरी करने आएंगे, बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे। बिहार में स्कूलों की स्थिति, बिहार में युवाओं की स्थिति, बिहार में शिक्षा की स्थिति, बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति, बिहार में बेरोजगारी की स्थिति सबसे बेहतर होना चाहिए जिस तरह से प्रचंड तरीके से वापस हुई है। और आज इसके बावजूद यदि ये कहा जाए कि नहीं हम नया इंडस्ट्री लगाएंगे, नए फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। संजीव जी, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप जवाब किस पर दे रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ आपकी पार्टी के सूरत हाल पर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक सवाल तो ये है ही कि क्या सचमुच में लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन सब कुछ ठीक ठाक चलने दे रहा है या कुछ गालमेल है। एक सवाल ये है। दूसरी बात, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को भी ये बात समझनी होगी कि लोगों के बीच में हम कौन सा मुद्दा रखें जिससे कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन यदि कुछ कर रहा है तो उसको सोचा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। संजीव कौशिक जी, तारिक अनवर ने एक बात और कही, उन्होंने ये भी कहा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ना बहुत समय लग गया, इससे गलत मैसेज जाता है। मैं उससे 2 कदम आगे की बात कह रहा हूं। हाँ। कांग्रेस पार्टी जब तक जमीन पर बहुत ज्यादा मजबूती के साथ काम नहीं करेगी, इससे पहले भी 2020 में भी आपने भी सुना और देखा होगा कि 2020 में भी बिहार के इलेक्शन के समय कांग्रेस पार्टी अपने ही वहां के अध्यक्ष के ऊपर टिकटों के वितरण का आरोप लगा था, और जिस तरह से उनको ऐन मौके पर हटाया गया। नहीं, इस बार भी हमने बहुत कुछ देखा लेकिन हुआ कुछ नहीं था। टिकट बेचे गए, ये भी आरोप लगे। राहुल गांधी के जो बहुत करीबी लोग हैं वो ऐसा सब कर रहे हैं, ये भी आरोप लगे, पर होता कुछ दिखाई नहीं दिया। बट लेट मी ब्रिंग डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। एक मिनट, कौशल कांत मिश्रा जी के पास मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर मिश्रा, कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूज विद इट्स बहाना। कांग्रेस पार्टी अभी भी यही कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी मदद की, इसीलिए एनडीए चुनाव जीता। रॉबर्ट वाड्रा तो यहां तक कह रहे हैं कि रीपोलिंग होनी चाहिए। रीपोलिंग होगी तो उनके हिसाब से नतीजा ही बदल जाएगा। यू सेइंग द आउटकम विल चेंज।
स्वाति, जो आपने प्रोमो दिखाया उसमें बहुत सारे कांग्रेस के लीडर थे, वो भी दूसरी बात कर रहे थे। दूसरी चीज, रॉबर्ट वाड्रा है कौन? क्या वो कांग्रेस के मेंबर है? नहीं। क्या वो पॉलिटिशियन है? नहीं। वो है कौन? वो एक लालची व्यापारी है, हाइब्रिड हिंदू हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस के चक्कर में प्रियंका जी से शादी की और अब वो पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे 140 करोड़ लोग देश में हैं, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई राजनीतिक व्यक्तित्व कुछ बोल रहा हो जिसका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो तो उस पर डिस्कशन ठीक होता है। नहीं, कौशल मिश्रा जिन्होंने प्रियंका गांधी से शादी क्यों की नहीं की वो बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन गांधी परिवार को घेरने के लिए आप लोग भी तो रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठाते हैं कि नहीं? मैं बता रहा हूं कि क्योंकि वो लालची व्यापारी है, देश की संपत्ति का दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, पॉलिटिकल कनेक्शन और अपने पॉलिटिकल परिवारवाद के चक्कर में एक व्यापारी को पाला जा रहा है, इसलिए उसकी आइडेंटिटी पे सवाल है। दूसरा सवाल, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी पे सवाल उठाने का कांग्रेस को कोई हक नहीं है। जब 1929 में मोतीलाल जी ने जवाहर जी को अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस का, जबकि पटेल जी उनसे सीनियर थे, तब डेमोक्रेसी नहीं नजर आई थी। अच्छा। जब 1946 में जब कैबिनेट मिशन का प्लान आया था, उसके बाद 15 स्टेट कमेटियां थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पीसीसी बोलते हैं जिनको, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 15 में से 12 ने पटेल जी को अध्यक्ष बनाने की बात की थी, एक ने भी जवाहर की बात नहीं की थी। तब इलेक्शन रिग हुआ था, तब ईसी कब्जे में था, क्योंकि गांधी जी के कहने पे पटेल जी ने अपना नाम विड्रॉ किया था। ये सिर्फ कांग्रेस का कैरेक्टर है, इस तरह से सवाल उठाते हैं। कुल मिलाकर के स्वाति जी, एक लाइन में बोलूं कि जो महागठबंधन के अपने पार्टनर हैं वो भी कांग्रेस के इस पक्ष के साथ नहीं है, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। ठीक है, आई वांट संजीव कौशिक टू कमेंट। वो कांग्रेस जो 20-22% पे सरकार चलाती आई है, वो आज 40% से ज्यादा वोट के पाने वाली। Okay, I want Sanjeev Kaushik to come in. Sanjeev Kaushik, the first reaction in fact came in from the TMC when the TMC said कांग्रेस पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी और पॉपुलैरिटी दोनों ही गिर रही है, और आज मोहम्मद आजम जो है समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं दैट कांग्रेस शुड लर्न फ्रॉम द समाजवादी पार्टी, दैट कांग्रेस इज अनअवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। देखिए, एक बात तो समझनी होगी, कांग्रेस पार्टी जितना कमजोर होगी क्षेत्रीय दलों का उतना ही उभार होगा। इसीलिए आप कमजोर पड़ रहे हैं क्या? नहीं, इसीलिए आप लोग जानबूझ के कमजोर पड़ रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों का उद्धार करने के लिए? नहीं। और ये बात जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हाइब्रिड, डॉक्टर साहब थोड़ा सा नजर फेर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की, पुरुष से लेकर महिलाओं तक नाम हम गिनाना नहीं चाहते हैं। इसको छोड़ दीजिए, उसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, और राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना भी कोई बुरी बात नहीं। हम भी राजनीति करना चाहते हैं, कोई और राजनीति करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी राजनीति में हैं, तो ये बुरी बात भी नहीं है। मूल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पिछले 10 सालों में जिस तरह से पंगु हुआ है, कमजोर हुआ है, जितने प्रश्न उठाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन, मैंने कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का साख बना रहना चाहिए। लेकिन संजीव कौशिक जी, आप एसआईआर का मुद्दा लेकर के गए ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? क्या एसआईआर पर रोक लग गई? क्या कोर्ट ने कहा कि बिहार में एसआईआर नहीं हो सकता, कि बिहार में एसआईआर इलीगल है? और जब चुनाव हार जाते हैं तो पी चिदंबरम उसका ठीकरा वोटर्स पर फोड़ते हैं। He says that the voters did not choose a strong opposition. Is it fair to blame the voters now? आप स्वाति, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतने भी नादान मत बनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा और एसआईआर के मुद्दे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं, मैं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया एसआईआर को या कहा कि इलीगल है? मैंने कहा कि फटकार तो लगी ना, जो कमियां थी उसको दुरुस्त की गई ना, तो उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए जितने कम वक्त में, सवाल तो यही था ना कि इतने कम वक्त में ऐसी क्या हलचल भी मच गई है कि आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और जो जितने डॉक्यूमेंट्स जोड़ रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट तो फिर आप मान लेंगे ना, फटकार चलिए लगा दी, फिर आप मान लेंगे ना कि सब कुछ दुरुस्त था, that there was no other problem? If there was no other problem except for what the Supreme Court said, जब फटकार लगाने की बात आप कह रहे हैं, then why do you continue to blame SIR and Election Commission? मैंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे निचले लेवल पर शाखा इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का यह फर्ज बनता है कि यदि इलेक्शन कमीशन पर एलओपी यदि कोई जवाब मांगे। You know, that's very interesting. A political party keeps on losing election after election after election after election, and the bahana is the same. Sanjeev Kaushik, perhaps the Congress party needs to come up with innovative bahanas at least. लोग भी अब पक चुके हैं सुन करके कि आप हर बार इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करने लग जाते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, फटकार तो लगी थी आपको, फटकार तो आपको सुप्रीम कोर्ट से लगी थी। इलेक्शन नहीं स्वाति जी, फटकार नहीं लगी थी, उन्होंने अपना
एक ओपिनियन दिया था, ऑर्बिटा डिक्टा जिसको बोलते हैं लीगल टर्म्स में, वो था, और दैट वाज नॉट बाउंडिंग। क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, उसने सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में वो एडवाइस मान ली दैट इलेक्शन कमीशन वाज नॉट बाउंड, इट वाज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। सेकेंड चीज, इलेक्शन कमीशन कांग्रेस ने जब देश आजाद होने के बाद 60 साल तक राज किया था, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट करने के लिए एक भी कानून नहीं बनाया था। किचन से बन के आ जाता था, जैसे किचन कैबिनेट चलती थी, वैसे जिसके ऊपर उंगली रख देती थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, पूरी गांधी फैमिली, वो इलेक्शन कमीशन। कम से कम अब कानून तो बना पहली बार। और उस कानून से जो इलेक्शन कमीशन चुन के आया है, उस पर अगर आपको कोई सवाल उठाना है तो कोई प्रूफ होने चाहिए। राहुल गांधी 3 बार मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, और हर बार उनको स्ट्रिप डाउन कर दिया गया है, और हमारी जरूरत नहीं पड़ी है, मीडिया ने ही उनको स्ट्रिप डाउन कर दिया कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितने गलत डेटा दे रहे हैं। और इसके लिए इन्हीं के अपने प्रवक्ता ये कहते हैं कि उनको जो डेटा दिया गया वो गलत डेटा दिया गया, तो देने वालों की गलती है। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस को कम से कम आप जो कह रहे हैं उस पर कांग्रेस सोचे ना सोचे, लेकिन ये जरूर सोचना पड़ेगा। Why is it that their own allies are now in a mode to disown them and suggesting कि आप हमसे सीखिए, and that you are unaware of the ground reality? Thank you very much, gentlemen, for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया।